مشاہد حسین سید اور مشاہد اللہ خان میں کنفیوژن ہوگی، ان کے بعد آپ کو دیتے ہیں. ٹھیک. اور اللہ ہی کا فرق ہے. جی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوشش کروں گا سر، آپ کے ساتھ ہی باقی بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ مہربانی کریں. میں نے کافی ساری چیزیں لکھی، میں اس کو کم کروں گا، فکر نہیں کروں. میں ایک بات تو اس وقت کرنا چاہ رہا تھا، وہ مشتاق صاحب نے نا وہ جو ایک وائرل ہوئی ہے قادیانیوں کے حوالے سے کہ وہ ہمارے جو نصاب کے اندر بہت ساری چیزیں انکارپوریٹ ہو گئی، اس کا اس نے بتایا ہے، وہ بڑا افسر تھا اور اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. تو یہ علی محمد خان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ایسے ہونا نہیں چاہیے ویسے کہ وہ اگر اس نے بتایا لوگوں کو کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، نصاب میں اس طرح سے تبدیلی ہو رہی ہے، اس نے کیٹیگوریکلی، میں بڑی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا چونکہ آپ نے منع کر دیا ہے کہ ذرا مختصر کریں، تو اس کو ضرور دیکھیں آپ کہ، اور وہ اس بندے کا جس کا ٹرانسفر ہوا ہے اس کو اپنی جگہ پہ آنا چاہیے. جس آدمی نے ایک بہادری سے ایک کام کیا ہے اس کو اٹھا کے جناب پھینک دیا گیا، یہ تو کوئی. اور اس وقت وہ مولا بخش بیٹھے ہوئے، انہوں نے ایک شعر سنایا تھا علامہ اقبال کا، تو انہوں نے کہا آپ بھی سنا دیں. تو وہ یہی ہے کہ علم کی بات ہے وہاں پہ. تو علم کی بات یہ ہے کہ علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم گہوارہ ہو سیارہ ہو انجام و نمو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا. تو یہ علم کے حوالے سے اس نے بات کی تھی جس کی طرف توجہ مشتاق صاحب نے دلائی. میں چند باتیں، اور ایک بات بہت زیادہ ہو رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے حکومت کی طرف سے، ان کو بھی کوئی کام نہیں ہے کہ جی نواز شریف جا رہے ہیں، نواز شریف چائے پی رہے ہیں، نواز شریف واک کر رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی احمق نہیں بیٹھے ہوئے حکومت کے اندر، انہیں سب پتہ ہے، جو ہمیں پتہ ہے وہ انہیں پتہ ہے، اور بہت ساری باتیں انہیں زیادہ بھی پتہ ہوتی ہیں. میں خود بیمار رہا ہوں جناب چیئرمین، آپ کے علم میں. یہ کہتے ہیں جی وہ چل کیوں رہے ہیں؟ بھائی آج کل جو لیٹسٹ، میرے 10 آپریشن سرجریز ہو چکی ہے، 20 کے قریب پروسیجرز ہو چکے ہیں. مجھے تیسرے دن وہ کہتے تھے کھڑے ہو کے دکھاؤ. ایک دفعہ ایسا بھی آیا وقت کہ میرا منہ اتنا بڑا ہو گیا تھا اور میرے ہاتھ ایسے ہو گئے تھے سوجن کی وجہ سے، ٹانگیں میں بھی یوں ہوتی. تو انہوں نے اس حالت میں مجھے کہا کہ چل کے دکھاؤ. 9 کلو سوجن تھی. میں یہ بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو، دنیا کو گمراہ کرتے ہیں کسی کی بیماری کا مذاق. خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں کسی پہ کوئی بیماری نہیں آنی چاہیے، اللہ سب کو صحت مند رکھے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے میں بیمار ہوں تو اس کا مذاق نہ اڑائیں. اور پھر عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. مطلب آپ اپنے خلاف بات کرتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی نواز شریف ہمیں دھوکہ دے کے چلا گیا. لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. جی وہ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے چلے گئے، ساری دنیا میں نے دیکھا کہ ایمبو لفٹر پہ وہ گئے اور کہہ رہے ہیں مطلب آپ کیوں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. اور پھر واک کرنا جو ہے آج کل، مجھے تیسرے دن کھڑا ہو کے کہا کہ اگر تم یہاں کا، یہ لنڈن کی بات ہے، کنگز کالج ہاسپٹل میں میری بہت ہی بڑی سرجری ہوئی تھی 10 سال پہلے. انہوں نے کہا جی اگر آپ ایک چکر لگا دیں تو خیر میں نے لگا لیا. ایک بیٹے کو پیچھے کیا، ایک کو آگے کیا، وہ لگے ہوا تھا منہ پہ، ادھر ادھر ساری چیزیں، وہ ہو گیا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے نہ کریں، اور یہ حکومتوں کا کام ہی نہیں ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سب کو جھول دے کے چلے گئے. بھائی جھول دے کے چلے گئے تو ایکشن کرو ان کے خلاف، پوری اپنی پنجاب گورنمنٹ کے خلاف ایکشن کرو، اپنی وزیر صحت کے خلاف ایکشن کرو، اور ڈاکٹر فیصل سلطان کے خلاف ایکشن کرو، اور عمران خان کے بھی خلاف ایکشن کرو جس نے کہا جی مجھے رحم آ گیا تھا. اور وہ رحم ان کا اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے آیا تھا کہ ابھی وہ چڑھے نہیں تھے جہاز میں، وہ رحم غائب ہو گیا تھا. کو خدا کا نام لو یار، کیا باتیں کرتے ہو آپ؟ لوگوں نے مرنا نہیں ہے.
किसी ने बीमार नहीं, सारे हर रोज लोग बीमार होते हैं, कभी कोई बीमारी का भी मजाक उड़ाता है किसी की। और एक ऐसा शख्स, देखें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हुआ यह है जो अभी उस पर बात नहीं हो रही, नवाज शरीफ के 2000 पे प्लेटलेट्स आए, मेरे भी अभी पिछले दिनों 15, 20, 25 दिन पहले आए, वैसे मैं तो बताता नहीं किसी को, बहुत ज्यादा कम हो गए थे, लेकिन 2000 नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन काफी कम हो गए थे। उस वक्त बात ये हुई थी और उसके कुछ फोरेंसिक हुए भी हुए हैं लेबोरेटरी में, इन्हें पता नहीं अभी होना क्या है, इंशाअल्लाह ताला। उनके बाकायदा प्लेटलेट्स गिराए गए थे, उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी, और रात को 2 बजे जब उनकी हालत खराब हुई तो फिर प्राइम मिनिस्टर को एक साहब ने फोन किया जो, और दूसरा फोन शहबाज शरीफ साहब को किया, और तीसरा फोन चेयरमैन नैब को किया कि जनाब ये तो जा रहे हैं और ये है और वो है। अच्छा, नवाज शरीफ जो है वो कोई नशई तो है नहीं, वो एक ताकतवर आदमी है, उसने कोई ऐसी उल्टे सीधे काम नहीं किए, तो वो टांगों पे चल के गया था उस वक्त में। तो भाई अभी अगर उसके वहां पे ऑपरेशन नहीं हुआ, ऑपरेशन होने से कोविड आ गया, और फिर हो या ना हो, मुझे आप एक बात बताएं जनाब, सऊदी अरब में कितने जबरदस्त हॉस्पिटल हैं, यूएई में कितने बड़े अच्छे जबरदस्त हॉस्पिटल हैं, वहां के लोग क्या जाके अमेरिका और लंदन में इलाज नहीं कराते? इलाज कराने का ताल्लुक आपसे क्या हुआ? इलाज जो मरीज जहां उसकी तबीयत चाहेगी वहां पे इलाज कराएगा ना। अच्छा, ये तो आप कह देते हैं कि ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया, आपने बड़े बना दिए हॉस्पिटल, 7 साल में केपीके में और 2 साल में यहाँ पे एक डिस्पेंसरी बनी नहीं है, बड़ी बड़ी बात है। और हॉस्पिटल बने या बनना बने, कल को अगर हम ये आपसे कहें कि आपने इतने अच्छे जो कपड़े पहने हुए हैं, क्या आपने पाकिस्तान के तमाम लोग ऐसे कपड़े पहन रहे हैं? नहीं पहन रहे हैं ना, तो फिर आप ये क्यों पहनते हैं? क्या लोग 500 कनाल में बनी गाला में रहते हैं पाकिस्तान के अवाम? जी वो गरीब बात है कि जी वो वहां पे चल रहे हैं और लंदन में और फलाना है। मुशाहिद साहब, मैं खत्म करूंगा जी, मैं 2, 4, 5 मिनट दे दें, मैं खत्म कर दूंगा। 10 मिनट तो हो गए। 10 मिनट अभी कहाँ से हो गए? ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। मुशाहिद साहब, बाकियों को भी आज प्रोरोग हो रहा है, बाकियों ने भी बात करनी है। मैं सब तेजी से देखें ना, हमजा शहबाज शरीफ 1 साल से जेल में नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रहा है। अच्छा, इन्होंने ये तकलीफें उठाई नहीं हुई, हमने उठाई हुई है, इसलिए हम कल को जब इनको लग पता जाएगा कुछ अरसे बाद, ये 10-10 फुट की दीवारें फलांग के भागने वाले लोग हैं, ये बड़े सियासी लीडर। शकीलुर रहमान को बेचारे को अंदर रखा हुआ है, यार को खुदा का नाम लो। कितने लोग हमारे जेलों में डाले, अब हमारा कौन सा आदमी छोड़ा जो जेल में नहीं डाला आपने? आपकी तसल्ली नहीं होती, आप मजाक उड़ाते हैं। खुर्शीद शाह पे कौन सा केस? उसको 1 साल हो गया उसको भी। ये कोई मतलब का तरीका होता है? और फिर ये है, या तो आपने मुल्क को संभाला हुआ होता ना, मुल्क के हालात जो हैं वो सारी दुनिया के, ना अमन है, ना सुकून है, ना चारा है, गम है, तुम्हारी बज़्म तरफ का अजीब आलम है। और वो तुम्हारी बज़्म तरफ का अजीब आलम है, और वो सरजमीन जिसे रश्क खुल्द कहते थे, खता माफ दहकता हुआ जहन्नुम है। ये हालत आपने मुल्क की कर दी। आप बातें कर, आज कराची डूबा हुआ है, 14 सीटें दी, बड़ी बातें करते हैं। 22 सूबाई असेंबली की, कोई नजर आया आपको कि पानी में? और ड्रामेबाजी करने के लिए ये हमारे आरिफ अलवी साहब भी, सदर भी वहीं गए, गवर्नर भी वहीं गए, बयान देने। ऐसे ड्रामाबाजी जब अपोजिशन में थे तो किश्ती 1 फुट पानी में लेके फिर रहे। अब लोग 4थी मंजिल से छलांगे लगा रहे। होना तो ये चाहिए था कि सारी हुकूमत वहां पे खड़ी होती, कर कुछ नहीं सकता। लोग क्यों नवाज शरीफ को याद ना करें, शहबाज शरीफ को याद ना करें? जरा सी तकलीफ आती थी वो जाके खड़े तो हो जाते थे। और ये सियासी लीडर का हक है, किसी पे एहसान नहीं है। आप तो ईद की नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठते, तो कराची के बेचारे जो डूबे हुए लोग हैं उनके लिए कैसे उठेंगे? पहले ईद की नमाज पढ़ने के लिए तो उठ लें आप। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कराची डूब चुका है, कराची के लोग परेशान हैं,
कराची को दाद रस्सी की ज़रूरत है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपने भी फरमाया था, मुझे खुशी हुई कि तमाम सूबों को वहाँ पे, मैं कहता हूँ तमाम सूबों को छोड़े, पहले फेडरल गवर्नमेंट की बात करें। इनके अपने लोग क्या करें? क्यों नहीं पूछते आप उन 14 MNA से जो कराची से इलेक्ट हुए और 22 MPs से कि वो कर क्या रहे? क्यों नहीं है वो फील्ड में जाके कम से कम इजहार यकजहती करें? आपके पास फंड्स हैं, आप लोगों को खाने पहुंचाएं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। कोई किसी का वाली बारिश नहीं है, घरों में पानी घुस चुका है। थैंक यू मुशाहिद साहब। मैं खत्म कर रहा हूँ। मुशाहिद साहब प्लीज बाकियों को भी आप मौका दें। मुशाहिद साहब थैंक यू। मैं 1 या 1.5 मिनट और बस। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि सैलाब आते रहते हैं। वो 1976 या 77 में सैलाब आया था, तो मुजीबुर रहमान शामी साहब ने उनका रिसाला था लैलो नहार, उसके टाइटल पेज पे एक शेर लिखा था कि इंसान की आंख खुश्क थी इंसान के जुल्म पर, अब जो पहाड़ रोए तो सैलाब आ गया। ठीक है, तो अब ये सोचना चाहिए कि ये ऐसा हो क्यों रहा है और क्या हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। जनाबे चेयरमैन, आपने 75% बात की, 25% आप लिहाज कर गए कराची के हवाले से। इनको झंझोड़ें, इनको कहें जाओ वहाँ पे, ख्वाब इस्तराहत के मज़े बहुत ले लिए हैं। एनडीएम में असल में ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा बाकी सूबे भी अपने सूबे के साथ खड़े हैं मुश्किल वक्त में। ये हालांकि आपका काम नहीं है, आपने फिर भी तवज्जो दिलाई है, अच्छा कहा। और मैं हासिल बजिंजों की आखिरी बात करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। उस दिन तकरीर तो मैंने कर ली थी। हासिल बजिंजो जो है ना, उसका नाम है हासिल, मकान नहीं था उन्होंने बताया। ये जो बड़े लोग होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, इनको ये बेनियाज भी होते हैं, खाली बड़े नहीं होते। मकान था या नहीं था उसकी बला से, लेकिन वो चला गया, हासिल चला गया, लेकिन उसका महसूल जारी रहेगा, लोग उससे रोशनी लेते रहेंगे। वो महसूल चुंगी होती है ना, जब कभी किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो महसूल ले लेगा उसकी ज़िंदगी पे, यानी कि नज़र डाल के। और आखिरी बात यह है कि हासिल बजिंजो वो शख्सियत थी, जब मिला आपने कभी देखा कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो या वो गुस्से में हो। और जिस वक्त वो सिगरेट भी पीता था, कहता मुझे, और टीवी पे बैठ के उसने कह दिया कि जी मैंने तो अब मर जाना कुछ अरसे बाद, और बड़े आराम से। लेकिन वो गया मुस्कुराता हुआ इस दुनिया से। वो है ना कि मरते मरते भी खुश घोंटों पर खंदाए जहाँ फिजा ही मचला है, और जहर के घूंट हमने पी पी कर अक्सर आबे हयात उगला है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद। I just, before I have a point of public importance, मैं दो इश्यूज़ पर इंडोर्स करता हूँ। एक तो हासिल बजिंजो साहब के बारे में सब ने ट्रिब्यूट भी पेश किया, हमने भी हिस्सा डाला था, और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। और मैंने तो बताया था कि मेरे कितने पुराने ताल्लुकात भी हैं, उनके साथ सफ़र भी किया है। एंड कबीर शाही साहब, वी ऑल शेयर, इट्स अ नेशनल ट्रेजेडी, इट्स अ नेशनल लॉस, क्योंकि ऐसे लीडर्स बड़े कम पैदा होते हैं। और मैंने तो कहा था वो दबंग भी थे और मलंग भी थे, और वाकई ये उनकी मलंगी थी। जो उन्होंने कोई